इम्पोर्टेंट होते हैं बट लगते नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है। और द ट्रॉपिकल एरियाज, द फॉरेस्ट एरियाज, और उसमें जो Greetings everyone. On behalf of Pathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 40th of our online CLAT marathon series and आज हम कुछ current affairs के बारे में discuss करेंगे. These are very general news which अभी last week ही, and I think it is really important for the examination because कुछ देर आर फ्यू टॉपिक्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बट लगते नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है. एंड समिट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, इट्स समिट्स, इट्स कॉन्फ्रेंसेस, दीज थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट ओके फॉर द क्लैट एग्जाम. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारा जो पहला करंट अफेयर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल. अच्छा, अब इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल से आपको क्या समझ आता है? लाइक ऑब्वियसली इंटरनेशनल, you guys know it, tropical timber, that means it is something related to the means like the proper use, putting it to optimum utilizations and maintaining and sustaining the wood or the rainforest area or the tropical areas, the forest areas, और उसमें जो trees हैं, plants हैं, उनको manage out करने के लिए this council has been created, and this council is the main part of the international timber organization, tropical timber organization. Okay, तो अब timber क्या है? Timber, I think you guys know, but जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ. Timber है the wood which is used in making of buildings and stuff. Okay, ये हमारी डे टू डे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंचेस वगैरह या बिल्डिंग्स हो गई या ड्रॉर्स हो गई, जहाँ वुड यूज होता है, जनरली टिम्बर इज यूज. दैट मीन्स द कंजम्पशन ऑफ टिम्बर इन आवर डे टू डे लाइफ इज ह्यूज. अगर उसका कंजम्पशन इज ह्यूज तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना एंड उसको प्रोटेक्ट करना इक्वली, ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के पास भी बना रहे, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अभी द 59th सेशन हुआ था ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल एंड इन 1983 की established है. The governing body of the International Tropical Timber Organization recently concluded with significant decisions shaping the future of sustainable tropical forest management and the trade of the sustainable produced tropical timber. Okay. Then अब अच्छा, key outcomes क्या थे 59th इसके सेशन के? The countries agreed to endorse 8 projects. कितने projects? 8 projects related to the sustainable forest management and related objectives. The session also approved and adopted a budget of USD 7.1 million for the coming financial year 2024-25. The council also approved a trial measure that will allow ineligible members to submit project proposals and concept नोट्स. ठीक है, तो कंट्रीज ने बेसिकली इसमें 8 प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी के लिए करे. अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बैकग्राउंड. पहली बात की, इट इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग द सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट and conservation of tropical forests, as the name suggests, and the expansion and diversification of international trade in tropical timber from sustainably managed and legally harvested forest. So I think you guys know that there are few trees, for example the red sandalwood, जिसका illegal like international market में उसका illegal export होता है. ठीक है, like जैसे ड्रग्स इधर उधर होते हैं, in the same way जो रेड सैंडलवुड के ट्रीज होते हैं वो भी इधर उधर होते हैं, तो दैट इज इलीगल. तो इस यही दैट्स वाई यहाँ पे लीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट एंड लीगल ट्रांजैक्शन की बात करी गई है.
was established under the International Tropical Timber Agreement 1983. मैंने आपको बताया, negotiated under the auspices of the United Nations Conference on Trade and Development, UNTD. प्लीज इसको याद रखिएगा, किसके अंडर ये डेवलप हुआ है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTD. ओके, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 75 मेंबर कंट्रीज है एंड उसमें से एक इंडिया भी है. ठीक है. इट्स मेंबर्स मैनेज अबाउट 80% of the world's tropical forests and are responsible for 90% of the global tropical timber trade. तो हमें यहाँ पे 4 बातें याद रखनी है. किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कौन से ईयर में, दैट इज 1983. कौन सा इस बार सेशन हुआ है, 59th सेशन हुआ है. एंड कितनी मेंबर कंट्रीज है, 75 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया. ओके, नाउ हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए, दैट इज द मोस्ट रीसेंट एंड इट हैपेंड यस्टरडे, दैट इज 26 ऑफ नवंबर. सो ओके, 26 ऑफ नवंबर पहली बात इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों माना जाता है? बिकॉज इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था इन द ईयर 1949. ठीक है. सेकेंडली, इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, इन्फोर्समेंट हुआ था एंड उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे. तो यू हैव टू रिमेंबर 26 नवंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 26 जनवरी इज द रिपब्लिक डे. ओके, तो कल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डे पे प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बात बोली स्पीच में, दैट शी सेड दैट देयर शुड बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दैट मीन्स शी इज प्रपोजिंग दैट कि एक सेंट्रल एग्जाम हो फॉर द जुडिशियल सर्विसेज इन आवर कंट्री, सो दैट फेयरनेस होगी, कॉम्पिटिटिवनेस होगी एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में. लाइक शी वांट्स सिमिलर टू द यूपीएससी जो आईएएस के एग्जाम का होता है, वैसे शी वांट्स. बिकॉज करंटली व्हाट आई फील इज एवरी स्टेट हैज देयर ओन जुडिशियल एग्जामिनेशंस. सो एंड समवेयर और द अदर डोमिसाइल स्टेट्स ऑल्सो लोग प्रेफर करते हैं. बट इससे there would be total fairness, there won't be any corruption and there would be a proper system. So I think it's a good proposal which she has made, but let's see what happens. President Draupadi Murmu on 26 November 2023 favored the creation of an all India judicial services examination to pick judges from varied backgrounds through a process which she said should be merit based, competitive and transparent. Murmu emphasized that a more varied representation of India's unique diversity on the bench and the bar definitely helps serve the cause and justice better, adding one way to hasten the diversification process. ठीक है? The creation of a system in which judges can be recruited from different backgrounds through a merit-based and a transparent process. ठीक है? इसके साथ 26 नवंबर मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन डे. मैंने साइड में चीजें आपको वापस करने के लिए, नोन एज संविधान दिवस. एवरी ईयर क्यों कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन January 26, 1950, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. प्लीज ये आपके जीके के क्वेश्चंस बनेंगे, आ भी सकते एग्जाम में. एंड मार्किंग इंडियाज ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक, thus 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे. तो वही मैं आपको सेम चीज बोलूंगी कि अगर कोई करंट न्यूज है, करंट न्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन डे आया, उसमें स्पीच आई, तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको जीके के क्वेश्चंस ऐड ऑन किए 26 जनवरी and which act was replaced, plus all India judicial services के बारे में propose किया गया. So these are little important things जिससे pointers उठ सकते हैं. आप सबको ये सब आता है, but I mentioned it for you ताकि revise करने में easy रहे. I hope you like today's video, and specifically if somebody wants to discuss about any topic, please put it in the comment box. Thank you.